अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। नेशनल हैंडलूम डे की मुनासिबत से रियासत भर में सरकारी तौर पर तकारीब का इनेकाद। वजीर KTR ने उप्पल में बुनकर्स भवन का रखा संगे बुनियाद। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ। तेलंगाना हुकूमत ने इमाम और मौज़नीन की मजीद 7,000 दरख्वास्तों को किया कबूल। माहाना 5,000 रुपये एजाजिया जारी करने के लिए जियो जारी किया गया। अब खबरें तफसील से। वज़ीर IT व सनत KT रामाराव ने नेशनल हैंडलूम डे के मौके पर उप्पल में बुनकर्स भवन का संगे बुनियाद रखने के बाद खिताब करते हुए बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव हैंडलूम सनत से वाबस्ता बुनकर्स को चिंता हेल्थ कार्ड फराहम करते हुए 25,000 आउट पेशेंट्स के इलाज की सहूलत फराहम कर रहे हैं। इसके अलावा रैतु बीमा की तरह बुनकर्स बीमा के तहत 5 लाख रुपये भी फराहम किए जा रहे हैं, जबकि हर रेलवे और बस स्टैंड पर एक स्टॉल भी कायम किया जाएगा। 1 सितंबर से बुनकर्स को 3,000 रुपये फराहम करने के इक़दाम किए जाएंगे, जबकि मरकज़ी हुकूमत और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बुनकर्स के तैयार करदा प्रोडक्ट पर 5% GST आयद कर रहे हैं। इस तकरीब में रियासती वज़रा, अराकीन असम्बली और कौंसिल के अलावा दीगर मौजूद थे। అనే మాట మీరు కోరడం జరిగింది। మీ కోరికను మన్నిస్తూ ఈ రోజు నేను ప్రకటిస్తా ఉన్నాను, ఈ చేనేత దినోత్సవం నాడు మనం ఈ రాబోయే నెల నుంచి అంటే ఈ ఆగస్టు సెప్టెంబర్ నెల నుంచే ప్రతి కార్మికునికి ప్రతి మగ్గానికి నెలకు 3,000 రూపాయల చొప్పున డైరెక్ట్ గా మీ అకౌంట్ లో జమ అయ్యే విధంగా ఈ పథకాన్ని మార్పు చేయడం జరిగింది। ఇది మీ కోరిక మేరకు, మీకు విజ్ఞప్తి మేరకే, ఎందుకంటే మొదలు కట్టుడు తర్వాత తెచ్చుకునుడు ఇది అయ్యే పని కాదు అని మీరే చెప్పినారు। నెలకు 3,000 రూపాయల చొప్పున దీని వెంటనే స్టార్ట్ చేస్తున్నామనే మాట కూడా వృత్తిలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి దీనివల్ల తప్పకుండా లాభం జరుగుతుంది। దీన్ని విస్తృతంగా ప్రచారం చేయాలని చెప్పి కూడా మిత్రులందరినీ కూడా నేను మీ చప్పట్ల మధ్యన మా డిపార్ట్మెంట్ రూపొందించింది, వారికి కూడా ధన్యవాదాలు చెప్పాలి। నేతన్నకు బీమా ఈ దేశంలో ఏ ముఖ్యమంత్రికి కూడా ఆలోచన రాలే। రైతు బీమా చేయాలి, రైతు కుటుంబం రోడ్డున పడకుండా ఆ కుటుంబానికి ఒక ధీమాని ఇవ్వాలి అనే ఆలోచన ముఖ్యమంత్రికి రాలే। మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు రాష్ట్రంలో ఉన్న 40 లక్షల పైచిలకు రైతు కుటుంబాలకు వారు ఒక్క రూపాయి కట్టే అవసరం లేకుండా రైతు బీమా కార్యక్రమం తీసుకొచ్చింది। అది చూసిన తర్వాత ఈరోజు మా నేతన్నలు అడిగినారు, అన్నా వ్యవసాయం తర్వాత అంతమంది ఆధారపడే వృత్తి మాది, వ్యవసాయం తర్వాత ఈ దేశంలో అంత ఎక్కువ మంది నిమగ్నమై పనిచేసేది నేత వృత్తి, మరి మా సంగతి ఏంది అని అడిగినారు। అంటే వెంటనే ముఖ్యమంత్రి గారు నన్ను, మా రమణ గారిని, మమ్మల్ని అందరినీ కూడా పిలిపించి, మా అధికారులను పిలిపించి బీమా కార్యక్రమం స్టార్ట్ చేయండి నేతన్నకు కూడా అని చెప్తే 5 లక్షల రూపాయల చొప్పున నేతన్నకు బీమాను స్టార్ట్ చేసినాం కానీ దాంతో మీకు సంతృప్తి రాలే। ఏమన్నారు మీరు, ఇది బాగానే ఉంది కానీ 59 ఏళ్ల వరకే వస్తున్నది, మా వాళ్ళేమో 75 ఏళ్ల దాకా పనిచేస్తుండ్రు, మా సంగతి ఏంది, మరి పెద్దోళ్ళ సంగతి ఏంది, ఎవరికైతే అవసరమో వాళ్ళకే వస్తలేదు కదా అన్నారు। అందుకే ఏం చేసినామంటే LICని పిలిచినాం, మాట్లాడినాం, వాళ్ళు మేము చేయలేము 60 ఏళ్ళు దాటితే వాళ్ళు అన్నారు। అందుకే మేము ఒక నిర్ణయం ఏం తీసుకున్నామంటే ఏదైతే మన కార్యక్రమం ఉందో నేతన్నకు చేయూత అనే కార్యక్రమం, థ్రిఫ్ట్ కార్యక్రమం ఏదైతే ఉందో ఆ థ్రిఫ్ట్కు లింక్ చేసి రాష్ట్రంలో ఎవరైతే 59 ఏళ్ల పైబడ్డ నేతన్న ఉన్నారో 59 నుంచి 75 ఏళ్ల వరకు ఉన్న నేతన్నలకు కూడా ఆ థ్రిఫ్ట్ కార్యక్రమంతో లింకు చేసి ప్రభుత్వమే నేరుగా మీకు ఇన్సూరెన్స్ ఇచ్చే విధంగా, మీకు బీమా ఇచ్చే విధంగా కొత్త కార్యక్రమాన్ని కూడా తీసుకున్నాం। గట్టిగా మీ చప్పట్లతో మా అధికారులకు ధన్యవాదాలు చెప్పాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా। ఇది కూడా చాలా అవుతుంది। ఆనంద్ భాస్కర్ గారు అన్నారు అన్వేషించండి అన్నారు, సార్ అన్వేషించడం ఈరోజే ప్రకటన కూడా చేస్తా ఉన్నాం, మీరు కూడా తప్పకుండా అభినందిస్తారని చెప్పి నేను ఆశిస్తా ఉన్నా। అది మాత్రమే కాదు, మీరు గతంలో ఇదే వేదిక ద్వారా నాకు చెప్పినారు ICICI లోంబార్డ్ ఇన్సూరెన్స్ ఉండే మాకు, ఇక్కడంటే ఆరోగ్యశ్రీ ఉన్నది, ఆరోగ్యశ్రీ ఏమో ఇన్ పేషెంట్ సేవలకు అంటే హాస్పిటల్ దాఖలైతే అది పైసలు అందుతాయి, అందులో 5 లక్షల దాకా వస్తాయి, కానీ అవుట్ పేషెంట్కు మాకు ఇదివరకు ఉండే మరి ఆడికి పోతే 12,500 రూపాయలు వస్తుండే మాకు ICICI లొంబార్డ్తోనని చెప్పింది। నేను మా అధికారులకు చెప్పిన
वज़ीर सियाहत व स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौड़ ने नेशनल हैंडलूम डे तकरीब से खिताब करते हुए बताया कि तेलंगाना की तश्कील के बाद से वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने हर तबके और हर फ़र्द की तरक्की को मुमकिन बनाने की हिकमत अमली इख्तियार करते हुए कारीगरों और कलाकारों के अलावा मेहनत कश तबके की तरक्की के लिए इक़दाम किए और रियासत में हैंडलूम सनत को फ़रोग़ देने के सिलसिले में बदकमा त्यौहार के मौके पर हैंडलूम मलबूसात तकसीम किए जा रहे हैं और बुनकर्स के बच्चों को तालीम से आरास्ता करने के अलावा उनकी लड़कियों की शादियों में कल्याणी लक्ष्मी स्कीम के तहत रकम भी दी जा रही है। इनकलाबी शायर गदर की अलवाल में हज़ारों अफराद की मौजूदगी में सरकारी एजाज़ात के साथ आखिरी रसूमात अंजाम दी गई। क़ब्ल अज़ीं वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव, स्पीकर असम्बली पी श्रीनिवास रेड्डी, रियासती वज़रा के टी रामाराव, सबिता इंदिरा रेड्डी, टी श्रीनिवास यादव, इंदिरा किरण रेड्डी, रुकन असम्बली क्रांतिकरण के अलावा सदर तेलंगाना कांग्रेस कमेटी, रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी, कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट कोमट वेंकट रेड्डी, सदर तेलंगाना जनरल समिति प्रोफेसर कोदंडराम, बीजेपी रुकन असम्बली रघुनंदन ने लाल बहादुर स्टेडियम पहुंचकर उनकी खिदमत को खिराज पेश करते हुए उन्हें गरीबों का मसीहा करार दिया। इंचार्ज रियासत तेलंगाना कांग्रेस कमेटी मानिकराव ठाकरे ने इनकलाबी शायर गदर की मौत पर अफसोस का इजहार करते हुए बताया कि उनकी मौत से मुल्क और रियासत की आवाम बिलखुसूस गरीब आवाम का बड़ा नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि गदर ने हाल ही में ज़िले खम्मम में मुनक़िद होने वाले कांग्रेस के जलसे आम में राहुल गांधी से मुलाकात करते हुए कांग्रेस की तायीद का वादा किया था और उन्होंने रेवंत रेड्डी और भट्टी विक्रमार्का की पदयात्रा में भी हिस्सा लेते हुए कांग्रेस से इजहार गानीगत की थी। मानिकराव ठाकरे ने बताया कि सदर ऑल इंडिया कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे, साबिक़ा सदर ऑल इंडिया कांग्रेस सोनिया गांधी और राहुल गांधी की जानिब से भी गदर को खिराज पेश किया गया है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती कामों की तकमील के लिए इक़दाम में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्के मलकपेट अहमद बलाला ने चंचलगुड़े में वाक़ गवर्नमेंट जूनियर और डिग्री कॉलेज की इमारत की जारी तामीर का जायज़ा लिया। इस मौके पर कॉन्ट्रैक्टर्स और ओहदेदारों को उन्होंने हिदायत दी कि वो तामीरी कामों में तेज़ी लाएँ और जल्द अज जल्द इमारत की तामीर को यकीनी बनाएँ। इस मौके पर कॉलेज प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल के अलावा दीगर जिम्मेदारान भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि छावनी डिवीज़न में वाक़ इस कॉलेज के लिए असली इमारत की तामीर की जा रही है। इस मौके पर सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। एक रूमा जो है ना अपने कंप्लीट करिए, स्पीड करके कंप्लीट करिए, बच्चों को वहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए। बच्चे बैठे रहे तो काम
तेलंगाना हुकूमत ने मज़ीद 7,000 आइमा और मौज़नीन की दरख्वास्तों की यकसोई करते हुए उन्हें माहाना 5,000 रुपये जारी करने के अहकाम जारी किए हैं। इस सिलसिले में महकमे अक़लियती बहबूद के तहत GOMS नंबर 42 जारी किया गया। वाज़ेह है कि असम्बली इजलास में क़ायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना हुकूमत से इस सिलसिले में मुतालबा किया था, जिसको फ़ौरी तौर पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कबूल करते हुए तमाम दरख्वास्तों की यकसोई का तयक़ुन दिया था। इस सिलसिले में मज़कूरा अहकाम जारी कर दिए गए और अब इस लिहाज से रियासत भर में वक्फ़ बोर्ड के तहत जुमला 16,995 आइमा और मौज़नीन को माहाना एजाज़िया दिया जा रहा है। इसी तर्ज पर हुकूमत ने मस्जिदों को दिए जाने वाले एजाज़िये को भी 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये कर दिया है। डिग्री कोर्सेस में दाखिलों के लिए दोस्त पोर्टल के तहत तलबा को एक और मौका दिया जा रहा है। ऐसे तलबा जिन्होंने अभी तक दाखिला नहीं लिया है वो 7 अगस्त से 14 अगस्त तक फराहम की जा रही सहूलत से इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। 400 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस रखी गई है, जहां 7 ता 14 अगस्त तक वेब ऑप्शन का इंतखाब किया जा सकता है और 17 अगस्त को नशिस्तों का अलाटमेंट होगा। तलबा इस सहूलत से इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। उर्दू एकेडमी तेलंगाना की जानिब से साल 2019-20 के तहत स्टेट बेस्ट टीचर का डॉक्टर SM सिराजुद्दीन को अवार्ड अता किया गया। साल गुज़िश्ता 2022 यौम असातिज़ा के मौके पर SGT GPS खोकरवाड़ी किशनबाग TTU जनरल सेक्रेटरी बहादुरपुरा मंडल डॉक्टर SM सिराजुद्दीन को 6 अगस्त बरोज़ इतवार उर्दू मस्कन में मुनक़िदा तक़रीब में हैदराबाद ज़िले सतह का बेस्ट टीचर अवार्ड दिया गया। डॉक्टर SM सिराजुद्दीन इदारे बराए तालीमी तहक़ीक़ व तरबियत तेलंगाना सेक्रेटरीट में तसनीफ़ व तालीफ़ के अलावा बहैसियत मुतरजुम भी रह चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने हिंदुस्तान की मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के कौमी और बैनुल-अक़वामी सेमिनार्स में भी शिरकत की, जबकि SM सिराजुद्दीन के मुल्क की मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ की मैगज़ीन्स में तहक़ीक़ी मक़ालात और मज़ामीन भी शाये हो चुके हैं। एक मिनट इधर देखिए सर, प्लीज सर प्लीज सर, इधर प्लीज प्लीज सर। राइट सर। रियाज सऊदी अरब में टीम शालीमार की जानिब से रियाज के मारूफ बिजनेसमैन मोहम्मद रफ़ीक और मजलिसी रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद ख़ान के फ़र्जंद डॉक्टर ख्वाजा अहमद ख़ान इम्तियाज़ के एज़ाज़ में एक तहनीती तक़रीब का अहतमाम किया गया। इस तक़रीब में रियाज व दीगर शहरों की मारूफ शख्सियात डॉक्टर मोहम्मद अशरफ, प्रेसिडेंट IJFF मुमताज़ अली अकरम, सैयद मिनहाजुद्दीन के अलावा कई कम्युनिटी अरकान बशमुल अब्दुल नईम ख़य्यूम, मोहम्मद इस्माइल हसन आमिर, अतहर मुहिद्दीन रशीद ख़ान व दीगर ने शिरकत की। दोस्तों अहबाब ने मोहम्मद रफ़ीक और हैदराबाद से तशरीफ़ लाए डॉक्टर ख्वाजा अहमद ख़ान इम्तियाज़ को उनकी सालगिरह के मौके पर मुबारकबाद भी दी और गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश की गई। नाज़रीन, रवि न्यूज़ की दीगर अहम खबरों पर एक नज़र।
लोकसभा में पीर के दिन डिजिटल पर्सनल डाटा बिल निदाई वोट से मंजूर कर लिया गया। जिस वक्त ये बिल पर मुबाहिस हो रहे थे, अपोजिशन अरकान का शोरगुल जारी था। कायद अपोजिशन अधीर रंजन चौधरी ने भी बिल पर एतराज किया। इस मौके पर खिताब करते हुए मरकजी वजीर मवासिलात अश्वनी वैष्णव ने बिल के खदोखाल पेश किए। उनका कहना था कि अगर मुल्क में कहीं कुदरती आफत आती हैं तो अथॉरिटी को डाटा की नोटिस देना चाहिए या अवाम की जानों की हिफाजत करनी चाहिए। किसी मुजरिम को पकड़ने के लिए क्या पुलिस को फॉर्म लिखना पड़ेगा? मरकजी वजीर ने तमाम जमातों से इस बिल की हिमायत की अपील की। इस विषय पर कई घंटे चर्चा हुई है। इन चर्चाओं के बाद सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आज ये बिल आपके साथ आपके जरिए से सदन के सामने पेश किया गया। अध्यक्ष जी, इस बिल में 140 करोड़ देशवासियों के डिजिटल पर्सनल डेटा की सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। बहुत अच्छा रहता अगर विपक्ष इस पे अच्छी चर्चा करता, लेकिन विपक्ष के किसी भी सदस्य को, किसी भी नेता को नागरिकों के अधिकार के बारे में कोई चिंता नहीं है। इसलिए ये केवल नारे लगाने में लगे हैं। इनको चर्चा में कोई रुचि नहीं है। इनको किसी विषय में कोई सारांश लाने की जरूरत नहीं है। अध्यक्ष जी, इस बिल को लाने से पहले बहुत एक्सटेंसिव पब्लिक कंसल्टेशन हुआ है। कानून के ड्राफ्ट को करीब 48 ऑर्गेनाइजेशन और 39 मंत्रालयों ने डिटेल डिस्कशन किया है। करीब 24,000 कंसल्टेशंस आए हैं। मैं इस बिल के मेन एस्पेक्ट्स को आपके सामने रखूंगा माननीय अध्यक्ष जी। इस बिल में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बिल की लैंग्वेज एकदम सिंपल रखी गई है, जिससे कि एक सामान्य मानवी भी इस बिल को समझ सके। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया है। इस बिल में ही की जगह शी का व्यवहार किया गया है, हिज की जगह हर का व्यवहार किया गया है। अध्यक्ष जी, इससे पहले मजलिस के रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल की मुखालिफत की थी। इम्तियाज जलील ने कहा कि ये बिल शख्सी राजदारी हक की मुखालिफत करता है। उनका कहना था कि अपोजिशन जमातों को भी और हुकूमत के खिलाफ बोलने वालों को भी इस बिल से मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। थैंक यू श्री इम्तियाज जलील जी। काइंडली कंक्लूड विदिन 2 minutes। Yes, sir. Mr. Speaker, I stand here to strongly oppose the Digital Data Protection Bill. And why I am saying this is because it raises serious questions, and one of them is the excessive centralization of power. When I say this, the union government, it says, can exempt any government or even private sector entity from the application of provisions of the law by merely issuing a notification, potentially resulting in immense violation of citizens' privacy, Section 17(2) and 17(3). On the other hand, no such exemption can be given to individuals who are opposed to you, to media that is opposed to you, and to opposition parties that are opposing your programs and policies. Now, another point is the bill does not bring about the surveillance reform that is urgently needed. Instead, it creates good framework for surveillance of citizens. Mr. Minister, your government in Maharashtra had already done surveillance through using the police department, and it was done in Maharashtra by the BJP government. We need to see clarification on this. 1 minute, sir. This bill also raises serious concerns over widening of censorship. Clause 37(1)(b) of the bill will allow the union government to censor content, which means if somebody is writing good about you, you will not censor. If somebody is writing or showing against you, then that Thank will you be very much. censored. Thank and you. It will be stopped. श्री संजय सेठ जी। इससे पहले मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने राज्यसभा में गवर्नमेंट नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल पेश किया। राज्यसभा में बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी इस बिल की हिमायत कर रही हैं। इंडिया इत्तेहाद के अरकान इस बिल की मुखालिफत कर रहे हैं। Amit Shah to move a motion for consideration of the Government of National Capital Territory of Delhi Amendment Bill 2023। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1991 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर लोकसभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाए। Motion moved
There are 3 amendments by Sri Tiruchi Shiva, Dr. John Bittas and Sri Raghav Chadha for reference of the Government of National Capital Territory of Delhi Amendment Bill 2023 as passed by Lok Sabha to a select committee of the Rajya Sabha. Members may move their amendments at this stage without any speech. Shri Tiruchi Shiva, are you moving your amendment? Dr. John Bittas. Sir, I move. Shri Raghav Chadha. कांग्रेस के रुकन अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली सर्विस बिल की मुखालिफत की है। राज्यसभा में मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि बिल मुकम्मल तौर पर गैर दस्तूरी है, गैर जमहूरी है, दिल्ली की आवाम की तवक्कुआत पर हमला है। ये बिल तमाम विफाकी कवायद की खिलाफ वर्जी करता है। Friends, we must also collectively oppose it because someday this anti-federal knock will come at your door. ये उनके लिए सोचने की बात है जो इस बिल का समर्थन कर रहे हैं या समर्थन करने की घोषणा कर दी है। जो आज दिल्ली सरकार के साथ हैं, शायद कभी आपके पास भी जल्द ही आपके साथ भी ऐसा ही हो सकता है। सबका नंबर आ सकता है। उस वक्त जब नंबर आएगा तो आपको सिर्फ याद आएंगे मार्टिन न्यूमेलर के वर्ड्स। वो पुराने जाने माने शब्द हैं लेकिन मैं दोहरा रहा हूं। First they came for the socialists and I did not speak out because I was not a socialist. Then they came for the trade unionists and I did not speak out because I was not a trade unionist. Then they came for the Jews and I did not speak out because I am not a Jew. Then they came for me and for you and there was no one left to speak for us. Friends, what does, let me start with my two heads. What does this bill do textually first? And secondly, what is the consequence of that text? Let me deal with these two aspects first. दोस्तों, ये बिल एक सिविल सर्विसेज अथॉरिटी बनाता है और उसको व्यापक शक्तियां देता है सुझाव देने की, हर नियुक्ति, हर स्थानांतरण, हर चीज के बारे में, ग्रेड ए अफसर से लेके दानिश अफसर तक। व्यापक है, विशाल है। कौन मणिपुर हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि जिलाई सतह की टीमें मुकदमात की जांच करेंगी। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि रियासती हुकूमत पुख्तगी के साथ सूरत हाल से निमट रही है और उसने मुकदमात को संजीदगी से लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि केसेस CBI के हवाले किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। उनका यह भी कहना था कि 42 केसेस की तहकीकात सिट कर रही है और इसे CBI को अभी तक ट्रांसफ़र नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 साबिका जजेस की कमेटी भी तश्कील दी है जिसकी क़यादत गीता मित्तल करेंगी। इसमें शालिनी जोशी और आशा मेनन भी शामिल रहेंगी। इसके अलावा IPS ओहदेदार CBI तहकीकात की निगरानी करेंगे। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने चीनी फंडिंग रिपोर्ट पर कांग्रेस को निशाना बनाया। मीडिया से बात करते हुए अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस और चीन को एक ही सिक्के के दो रुख करार दिया। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस चीन और न्यूज़ क्लिक की आपस में शराकतदारी है। उन्होंने राहुल गांधी पर तंज करते हुए कहा कि नकली मोहब्बत की दुकान में चीनी अशिया देखी जा सकती हैं। कई वर्षों से चला रहे हैं। अब ये न्यू टेक्नोलॉजी का उपयोग करके भी भारत की छवि को खराब करने के लिए, भारत के बारे में दुष्प्रचार करने के लिए, भारत में फेक न्यूज़ को बढ़ावा देने के लिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस के नाम पर ये अपनी दुकान चला रहे हैं और इसके ऐसे बहुत सारे सबूत समय समय पर मिलते हैं और उचित कार्रवाई भी की जाती है। ये विदेशी हमले होंगे भविष्य में भी, लेकिन बात यह है विदेशी हमलों के सामना करने के लिए क्या कांग्रेस पार्टी भारत के लोगों के साथ खड़ी है या विदेशी हमले करने वाली एजेंसियों के साथ खड़ी है? सवाल ये। आप पार्टी की वजीर आतिशी मार्लिना ने कहा कि आज बीजेपी ये वाजे कर देगी कि वो ना तो जमहूरियत का एहतराम करती है और ना ही इसे विफाकी ढांचे का एहतराम है। बीजेपी एक मुंतखबा हुकूमत की ताकत को छीन रही है। ये बिल
क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी ये दिखा देगी कि ना वो लोकतंत्र का सम्मान करती है, ना वो संघीय ढांचे का सम्मान करती है, ना वो देश के संविधान का सम्मान करती है, क्योंकि वो एक चुनी हुई सरकार की ताकत छीनने की कोशिश कर रही है। हरियाणा कांग्रेस लीडर का पार्टी हेडक्वार्टर में इजलास हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे की क़यादत में हुए इस इजलास में हरियाणा के मौजूदा हालात और दूसरे उमूर पर भी तबादले ख्याल किया गया। हरियाणा इंतजामिया की तरफ से हालिया तशद्दुद से मुतासरा नूह में जारी इंतजामी कार्रवाई पर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। जस्टिस GS सिंधुवालिया और जस्टिस हरप्रीत कौर जीवन की बेंच ने अज़खुद यानी सोमोटो इस मामले की समाअत करते हुए हरियाणा हुकूमत को नोटिस जारी की है और उनसे जवाब तलब किया है। वाज़ेह है कि 31 जुलाई को नूह में हुए पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद 6 लोगों की मौत हुई थी। एक इमाम जाँ बहक हुए थे और दूसरों की भी मौत हुई थी। नूह के अलावा तशद्दुद के वाक़यात गुरुग्राम तक फैल गए थे। इंतज़ामिया की तरफ से नूह के तोरूर टाउन के अलावा दूसरे मुकामात पर भी इंतज़ामी कार्रवाई अंजाम दी गई थी। अब हरियाणा और पंजाब की हाई कोर्ट ने इंतज़ामिया की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। डिप्टी कमिश्नर धीरेंद्र खड़गाटे ने मुतल्लिक़ा ओहदेदारों को इंतज़ामी कार्रवाई पर रोक लगाने की हिदायत दी है। बताया जा रहा है कि 350 झोपड़ियाँ और 50 सीमेंट के ढांचे गुज़िश्ता 4 दिनों के दौरान मुनद्दम किए गए। मुख्तलिफ जमातों ने इस इंतज़ामी कार्रवाई के दौरान मुसलमानों की इमलाक को मुनद्दम किए जाने का भी इल्ज़ाम लगाया था। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी हरियाणा हुकूमत की तरफ से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बनाए रखने की वजाहत को मुज़ायका खेज़ करार देते हुए कहा था कि कट्टर हुकूमत के पास कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का मतलब मुसलमानों की इमारतों, घरों और मेडिकल शॉप्स को मुनद्दम करना है। तशद्दुद से मुतासरा हरियाणा के नूह में पुलिस की तरफ से ताजरीन को अपनी दुकानात खोलने की तरगीब दी गई। पीर की सुबह नूह में कर्फ्यू में नरमी दी गई थी। मुकामी पुलिस के DCSP ने भी अवाम से मुलाकात की और दुकानात खोलने की तरगीब दी। इस मौके पर मुतालिका MLA जाकिर हुसैन भी मौजूद थे। इस मौके पर मुतालिका ओहदेदार ने बताया कि नूह में सूरत हाल पूरी तरह से बेहतर है। उनका कहना था कि लोगों को तरगीब देने के बाद बाजार खुल रहा है। रुकन असम्बली ने भी बताया कि 7 दिन से बाजार बंद था। हमने अवाम को यही तरगीब दी कि कर्फ्यू में नरमी के दौरान बाजार खोला जाए और पुलिस के जो क़वायद हैं उसकी पाबंदी की जाए। रिलैक्सेशन दिया जा रहा है क्या कुछ? देखिए, सिचुएशन पीसफुल है। बोथ कम्युनिटीज़ ने हमसे आग्रह किया था कि जी आपका अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आता है और थोड़ा सा हमारे को पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है और हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर जो है उससे बढ़ता है विश्वास लोगों का, तो वी विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी विल ओपन द शॉप्स एंड वी विल एंश्योर दैट द टाइम जो आपने दिया है उसी के अंतर्गत हम दुकानें खोलेंगे और वी विल अवॉइड बाय द कर्फ्यू रेस्ट्रिक्शन। लोगों से आपकी कभी काफ़ी देर तक बातचीत हुई, क्या लोगों ने कहा मार्केट आपसे खुलेगी? पूरी खुल रही है, आप देख सकते हैं सारे सबने खुलना चालू कर दिया और जो समय रेस्ट्रिक्शन हमने दिया है उसी के अंदर क्या कुछ आपने रिस्ट्रिक्शन दी? कितनी देर के लिए मार्केट? देखिए ऐसा है, अभी तो हमने आज तो 9 से 1 बजे तक के लिए कहा है, ठीक है। जैसे जैसे हमको लगेगा कि सामान्य हालात होते जा रहे हैं, विल मेक श्योर कि उसको लंबा समय तक ओपन किया जाए। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। नेशनल हैंडलूम डे की मुनासिबत से रियासत भर में सरकारी तौर पर तकारीब का इनेकाद। वजीर KTR ने उप्पल में बुनकर्स भवन का रखा संगे बुनियाद। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हल्का और डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ। तेलंगाना हुकूमत ने इमाम और मौज़नीन की मजीद 7,000 दरख्वास्तों को किया कबूल। माहाना 5,000 रुपये एजाजिया जारी करने के लिए जियो जारी किया गया। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्तिताम पज़ीर होती है और रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।